ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਇਵਨ ਜੇ ਕੋਈ +2 ਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਪਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਜਸ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੈਪਲਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ USPs ਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਆਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਡ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ जनवरी की गल शुरू करा कि मई तो शुरू करा आई थिंक दीपक सर दीपक जी सो आई थिंक इस टाइम पर अगर अब अभी इस टाइम पर हम इनटेक की बात करें वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर उसको देखें तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि सभी स्टूडेंट्स को जो कनाडा में स्टडी प्लान कर रहे हैं दे शुड गो फॉर May 23 और दे शुड गो फॉर September 23 इनटेक बिकॉज अभी जो जर्नल वीज़ा टाइम लग रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 2 to 3 months सो अगर आप जनवरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका वीज़ा टाइम से नहीं आएगा एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप डेफरमेंट के लिए अप्लाई करें फिर मई में जाना पड़ेगा फिर मई में जाना पड़ेगा सितंबर में जाना पड़ेगा सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप फ्रॉम डे 1 आप व्हाई डोंट यू प्लान फॉर May 23 और September 23 intake जी फॉर एग्जांपल मई ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ इस बारे चानना पाओ टुडे आई एम हियर टू असिस्ट ठीक है ना तो मैं तो बार बार बोलता ही रहा हूँ तो टुडे आज स्पेशलिस्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स हैं तो ये लोग बताएंगे और कोई क्वेरी होगी डेफिनेटली आई एम आल्सो हियर टू गिव माय इनपुट फ्रांसिस्को इफ एनीबॉडी apply for the May intake so students in how many days will they get offer letters from the university Yeah, that's a good question. The students apply for the main intake expect a level of offer within a week once we have Within a all one the week. documents. Yes. ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ 1 ਵੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ परसेंटेज की गल करते हैं पहला +2 की गल कर ली कि घट्टो घट्टी कितनी % दे दाखला हो सकता सो अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं सो अगर एकेडमिक्स में हम देखें सो सबसे पहली चीज़ हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी +2 कंप्लीट किया है ओवरऑल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें सो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हम कैपिलानो यूनिवर्सिटी में ऑफर करते हैं वी वांट 60% ओवरऑल एंड इन एनी 2 कोर सब्जेक्ट एनी 2 मेन सब्जेक्ट हमें 50% अबव चाहिए सो ये एक हमारा जनरल रिक्वायरमेंट रहता है एंड अलॉन्ग विद दिस जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करते हैं आइल्स की बात करते हैं सो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड बाय कैपिलानो यूनिवर्सिटी वी वांट 6.5 बैंड ओवरऑल नो लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल जी फ्रांसिस्को व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ co-op program I read the your brochures a lot of programs belong to the co-op programs so can you elaborate the co-op programs? Absolutely. Co-op programs gives the students the opportunity to be on the field and to put in practice everything that they learn in the classroom. It's an attractive and we know the students benefit on when they register in a co-op course and it brings a lot of benefits to students. देखिए कोऑप में एक जैसे सर ने बताया है कोऑप में नेचुरल सी बात है कि जो इंटर्नशिप है जैसे इंडिया में इंटर्नशिप होती है तो यहाँ कोऑप है तो ये एजुकेशन का पार्ट है मीन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली
कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ प्रैक्टिकली पार्ट है जो उसको करना है, उसमें यूनिवर्सिटी असिस्ट करती है। जब तक आप कोऑप नहीं करोगे तब तक आपको डिप्लोमा डिग्री अवार्ड नहीं होगी। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी स्टूडेंट्स को जॉब जल्दी मिल जाती है। दिस यूनिवर्सिटी हैज मोर देन 95% सक्सेस रेट इन एम्प्लॉयमेंट। दैट इज द रीजन कि इनके पास कोऑप है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3 ਸਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਸਕੋਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? So it actually depends and it varies from program to program. ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अप्लाई कहाँ पर कर रहा है, किस कंपनी में कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ पेड वन। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ इतनी फीस होएगी या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ एड ऑन चार्जेस होंगे? नहीं, इसमें आपके कोई भी एड ऑन चार्जेस नहीं है। जो भी फीस मेंशन है ये आपको स्टूडेंट्स को ईयरली बेसिस पर पे करना होता है। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे यूजी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, सो हमारा जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा दैट विल लाइज समवेयर इन बिटवीन 20,500 कैनेडियन डॉलर्स टू 21,500 कैनेडियन डॉलर्स। और अगर हम पीजी स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स की बात करें जो हम ऑफर करते हैं कैपेलानो यूनिवर्सिटी में, सो हमारी जो 2 years की फीस रहती है वो रहेगी समवेयर अराउंड $34,000 फॉर 2 years। जी। सो या there's lot of USPs of the universities like climates and durations from the downtown Vancouver's. Can you elaborate about the more USPs for the students? Absolutely. So coming to Capilano University, our campus is located close to 25 minutes drive from downtown, 15 to 20 minutes from downtown. So when the students come, they are part of the communities. It's relatively close to campus. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਪਕ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਆਰਟਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰਸ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਗਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। बड़े सारे क्रिएटिव लाइन दे प्रोग्राम्स ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। सो ऑफकोर्स जैसे आपने बोला हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं एंड इन प्रोग्राम्स में से काफ़ी यूनिक प्रोग्राम भी हैं जो फिल्म एनिमेशन 2D 3D से भी रिलेटेड है, म्यूजिक थिएटर्स। यस। एंड बहुत सारे टूरिज्म रिलेटेड प्रोग्राम भी हैं बिकॉज वैंकूवर इज़ अ टूरिज्म हब, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 5th मोस्ट लिवेबल सिटी। सो हमारे पास 4 टूरिज्म के प्रोग्राम भी हैं। सो वी स्ट्रांगली रिकमेंड because we have more than 100 programs with us in Capilano University. अगर आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में और जानना है सो आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की टीम से ऑफकोर्स कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जिनमें हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अप्लाई करें एंड वी कैन गिव यू एन एश्योरेंस दैट यू विल गेट एन ऑफर लेटर। बट देन एट द सेम टाइम देर आर सर्टेन प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हमारे पास है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं बिकॉज दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर नॉट अवेलेबल विद other institutions in British Columbia. So for that matter, I'll strongly recommend to speak with Western Overseas and they'll be more than happy to guide you that for which program you can apply in Capilano. देखो अगर डिटेल में यहाँ बात करें ना तो इनके जो प्रोग्राम है मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। इनका पर्पस यही है कि भाई डेलीगेट्स को बुलाने का कि स्टूडेंट तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। दे हैव द बिजनेस प्रोग्राम, इनके पास UG PG बैचलर्स बिजनेस में है, जिसमें से मैं यहाँ पे नेबू प्रोग्राम की ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये जो नेबू प्रोग्राम है इनका 1 year का भी है और 2 year का भी प्रोग्राम है। इसका सक्सेस रेट आप कह सकते हो अप्रोक्स 100% के आसपास है। अगर स्टूडेंट अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है और फाइल आपकी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होती है तो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। इसमें बच्चे का वीज़ा आता है। मैं किसी एक स्टूडेंट की यहाँ बात करूँगा, अनुराधा। इस स्टूडेंट ने मेरे पास ही जॉब करी थी, इवन कि शी बिलोंग्स टू माई फैमिली। एमकॉम इस बच्चे ने किया था। एमकॉम करने के बाद इनका 4 to 5 year का वेस्टर्न ओवरसीज में ही वर्क एक्सपीरियंस था एडमिन पार्ट में। तो इवन कि सी वांट टू गो इन द टोरंटो साइड कि जो हमारी फैमिली है कुछ टोरंटो साइड में बैठी है, देन बट आई सजेस्टेड कि इफ़ यू वांट टू गेट द अप्रोक्स 100% स्टूडेंट वीज़ा देन यू शुड गो इन द नेबू प्रोग्राम।
तो हमने इनकी फाइल लॉन्च की एंड फाइनली शी गोट द वीजा, नाउ शी स्टडिंग। सितंबर इनटेक में ये लड़की गई थी। Yeah. तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है नेबू प्रोग्राम, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा इनके पास कम्युनिकेशन बैचलर्स में है और डिप्लोमा भी है, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज डिग्री और कम्युनिकेशन स्टडीज का डिप्लोमा भी है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा टूरिज्म मैनेजमेंट, जैसे दीपक सर ने बात की है, इसमें यूजी भी और पीजी भी है। मेजोरिटी ऑफ द प्रोग्राम रिक्वायर्स 6.5 एंड नो लेस देन 6, बट एक प्रोग्राम है टूरिज्म मैनेजमेंट इंटरनेशनल डिप्लोमा, जहाँ 6 ईच पे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। एंड दे हैव द पीजी डिप्लोमा एज वेल, पोस्ट बैचलर डिप्लोमा ग्लोबल हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 6.5 एंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। एंड इसके अलावा बैचलर्स में टूरिज्म में बैचलर भी है एंड डिप्लोमा भी है। इसके अलावा किंजियोलॉजी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें सुपर मेडिकल चाहिए हमें, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये स्टडी है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ रिक्वायर्ड है। तो कोई भी बच्चा बैचलर करना चाहता है किंजियोलॉजी में तो मोस्ट वेलकम। इसके अलावा एजुकेशन एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ में भी इनके पास बहुत अच्छे प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डिप्लोमा। साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा ह्यूमनिटीज़ की भी, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री इनके पास है। इसके अलावा एसोसिएट ऑफ आर्ट डिग्री क्रिएटिव राइटिंग एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, अगर कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड जाना चाहते हैं इनके पास इंग्लिश में भी है। और इसके अलावा इनको के पास साइकोलॉजी से रिलेटेड भी ये प्रोग्राम है, 3 स्पेशलाइजेशन है। एज वेल एज इनके पास अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल बैचलर डिग्री है, साइंस डिग्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जिस बच्चे ने पढ़ा है वो बैचलर ये डिग्री कर सकता है। इसके अलावा एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री, इसमें आप मेडिकल वाला बच्चा भी और नॉन मेडिकल वाला भी दोनों तरह से बच्चा जा सकता है। एक इनके पास प्रोग्राम है एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री बायोलॉजी, यहाँ पे मैथ की रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो यू कैन अप्लाई in this program. तो majority of the program requires 6.5 and no less than 6 in UG and PG, but एक डिप्लोमा है जो टूरिज्म का, वहाँ पे 6 ईच में भी आपका एडमिशन हो सकता है। UG की फीस अप्रोक्स 21,000 पर ईयर है। इसके अलावा जो डिग्री की फीस है वो 34, PG डिप्लोमा की जो फीस है वो $34,000 है। 3 इनटेक है, जैन, मई और सितंबर। नाउ वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर मई एंड सितंबर। Francisco, in the academic levels for the English, I saw the table for the language levels. There is a mentions TOEFL, PT, IELTS. All are tests, language tests are accepted in this university. We accept TOEFL, yeah, that's one of the, As well as the PT? English tests, exactly, yeah. And so English, IELTS or TOEFL, they're both accepted. ਤੁਸੀਂ as ਕੀ a ਦੇਖਦੇ ਹੋ English. ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗੀ ਦਾਖਲਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ? देखिए अगर आयस है तो एसडीएस कैटेगरी बन जाएगी। ईवन के 6.5 नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है और एक प्रोग्राम में 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, वो एसडीएस फाइल में जाएगा। अगर बच्चे ने टफल या पीटी के साथ आ रहा है तो वो नॉन एसडीएस फाइल जाएगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एसडीएस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि बच्चा आइल्स की तरफ जाए। अदरवाइज पीटी और टफल के साथ भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करिए एंड सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सक्सेस रेट इनका बहुत अच्छा है, वीज़ा का भी और इवन के आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का सक्सेस रेट भी 95% अनुभव है। मीन हर एक वो बच्चा जो ग्रेजुएट होता है 100 में से 95 बच्चों को जॉब मिलती ही मिलती है। तो जहाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है, एंड आप खुद भी कह रहे थे कि आपने 2 बार इस हाँ जी, मैं 2 विजिट बार किया गया, है, मेरा तो वैसे तो शौक है, बाहर आप पढ़ के खुद बता फोटो सकते हैं खिंचवा कि कैसी लेना। यूनिवर्सिटी है। ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇਵਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 100 EMPLOYE ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 100 EMPLOYEES ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟਡ। So yes, British Columbia में Capilano University is one of the institution. We are among top 100 employers. That is a very big recognition for us as an institution. And of course, because Capilano University is one of the oldest institution established in 1968. So we have connections, we have tie-up with a lot of companies. They used to come, they used to recruit student for us. तो वो कहीं ना कहीं एक edge मिलता है जी जी, सभी स्टूडेंट्स को, सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो भी कैपिलानो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। that's good. And I also want to point out over here that Francisco Silva, he looks after CIE, and CIE is one of the departments which helps out international students finding jobs, giving references, and it can be anything, and we are there to support them. That's good. That's good. So it's a very big benefit to the overseas students because Vancouver is the biggest port in Canada,
and it's a business hub in the Canada. Exactly. So students have a lot of benefits to the universities for the find the jobs like that, logistics, managements, even lot of programs are there in the program Vancouver's. So Francisco, can you tell us about the postgraduate employment rates? And Yeah, so thanks. That's a good question. So I know students are looking forward to get employed after graduation. We have, I think, you mentioned this, a 95% employment rate, which is high and within the province. And that's right. Vancouver is a destination city, not just for tourism. A lot of students from India come and study their education in Vancouver. Every year we receive hundreds of students from India. So we got experience working with the students from the country. ਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇਖਦੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ $40-45,000 ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੀੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਜਸ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? बेसिकली जो मुझे यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी जो मैं कहूँगा वो है, क्योंकि देखिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ 2-year प्रोग्राम एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ 4-year प्रोग्राम, सो जो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की, जो कोर्स मॉड्यूल्स हम कवर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, सबसे पहली चीज़ कि वो ज़्यादा होते हैं जी। सेकेंड, पेड कोऑप्स। अब लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर अ 2-year प्रोग्राम, देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू गेट 1 कोऑप, बट देन अगर आप एक 4-year डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी पेड कोऑप करने के लिए। एंड आई थिंक आपने भी अभी पहले मेंशन किया था कि द एम्प्लॉयमेंट रेट इज क्वाइट हाई देन एज कंपेयर टू अ डिप्लोमा सेंटर है, वहाँ सेंटर है जहाँ वैंकूवर में यूनिवर्सिटी है, साथ साथ में इतनी सारी जॉब्स हैं। होटल लाइन की बात कर लो, लॉजिस्टिक्स की बात, पता मैं बोल ही नहीं सकता, इतनी बड़ी लिस्ट है। कुछ प्रोविंसेस में ऐसी जगह यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं कि आसे पासे 100 200-300 किलोमीटर ढूंढने पे भी जॉब आसानी से नहीं मिलती, मिल जाती है। अब बात आती है प्रदीप जी के, जो दीपक जी ने बताया कि अवेयरनेस की कमी है। मुझे ये लग रहा है अवेयरनेस से ज़्यादा थोड़ा हमारा कंसल्टेंट्स बात को गोलमोल कर देता है। अभी किसी ने प्रोग्राम देखा, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी लगी, वो चला गया मेरे वर्गे के पास, अभी मेरे टाई अप नहीं है इनके साथ, तो मैं उस बात को गोलमोल कर दूंगा, नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है। कि टाई अप ना होना भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास एक बहुत बड़ी कमी है कि उसको गलत काउंसलिंग देते हैं। डेफिनेटली इट्स मैटर अ लॉट। जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो अगर आपका टाई अप नहीं है तो आप फिर वही प्रोडक्ट पिच करोगे जो आपके पास है। कैपिलानो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके टाई अप्स कुछ सिलेक्टेड एजेंट्स के साथ है, हर एक एजेंट्स के पास ये नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड सेकेंडली ये तो पेरेंट्स इस बात से अवेयर हैं बट कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारने में बिलीव करते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बैचलर प्रोग्राम, डेफिनेटली आप 4 year की स्टडी कर रहे हो। इफ़ यू विल गो फॉर द डिप्लोमा मीन यू विल स्टडी ओनली 2 year, तो 4 year में ज़्यादा नॉलेज आएगा या 2 year में ज़्यादा आएगा? 2 year की स्टडी के बाद आपका सैलरी पैकेज हाई होगा या 4 year की डिग्री बाद सैलरी पैकेज हाई होगा? ये सबको पता है, बट आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर द हायर एजुकेशन इन कैनेडा and really want to make your bright career, then go for the bachelor program. Francisco, anything you want to share which I could not ask you for the universities? Absolutely. I'd like to thanks for the opportunity to be here, and I look forward to receiving more students from India. You are in good hands. We work with Western Education, and they have the experience working with students from India. So I look forward to welcoming students from India next time in India. ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਇਆ? I think most of the topics are already covered, but I would like to thanks Western Overseas for having us here, and we look forward to have more students in Capilano University. सर जाते जाते मैं जरूर बोलना चाहूँगा, मेरे को एक स्टूडेंट और याद आ गया। स्टूडेंट गन्नौर से बिलोंग करता था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट था। 2 बार उसकी कनाडा से रिफ्यूज आई थी पीजी प्रोग्राम में, 2 बार। देन ही केम टू अस, ठीक है, तो आई सजेस्टेड हिम द नेबू प्रोग्राम। नाउ ही गॉट द PR after successfully completion of the NEBU program. Now he got the PR. Oh great. तो कहने का मतलब ये है, नेबू प्रोग्राम बैचलर्स तो इनके बहुत अच्छे हैं, डिप्लोमा भी बहुत अच्छे हैं, नेबू तो माशाल्लाह कुछ हो रही है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਦਾਖਲਾ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2023 ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।